Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. For last couple of days, we have been discussing theory of supply. In the supply theory, we discussed the meaning of supply, the supply curve, the supply schedule, and the various concepts related to supply like stock, quantity supplied, and supply, etc. and etc. Now let us today discuss supply function or the factors affecting supply of a commodity. So far as supply function is concerned, it studies the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. You know that supply is determined by a number of factors like price of the commodity, price of other goods, number of firms. So, what is the relationship between supply and these determinants and these factors? Today we have to discuss it. You know that the supply of a commodity mainly depends upon the goal of firm, the price of the commodity, the price of other goods, price of factors of production used in the production process, है ना? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका असर बराह रास्त सप्लाई पे होता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स एज यू कैन express it as supply of commodity X is the function of price of the commodity, price of other goods, then goal of firm, price of factors वगैरह वगैरह वगैरह. तो इस तरह से हमने ये फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस करने हैं. What is the role of price in determining supply? What is the goal of firm in determining supply? Now let us start with the first factor and the most important factor, that's price of the commodity. जैसे कल भी आप जान गए कि there is a direct relationship between price of a commodity and its quantity supplied. Generally higher the price, higher is the quantity supplied, and lower the price, lower is the quantity supplied. That is the two move in the same direction. Price rise होता है, supply भी rise होती है. Price fall होता है तो supply भी rise होती है. इस तरह से हमारी जो सप्लाई करो, ठीक है ना, ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और सप्लाई करो स्लोप्स upwards from left to right, indicating that there is a direct relationship between price and supply. The next factor is price of other goods. The supply of a good depends on the price of other goods also. An increase in the price of other goods makes them more profitable for the firm. They will increase their supply. On the other hand, the supply of the good, the price of which has not changed, will become relatively less profitable. The supply of such a good may increase. It happens in case of, mostly in case of substitutes. Sometimes we see some goods going out of the market, and those ones which are having high prices, उनकी सप्लाई ज़्यादा होती है. जैसे आप देख रहे हैं जो बहुत पुरानी मेडिसिन और बहुत पॉपुलर मेडिसिन थी, मार्केट में होती हैं, वो अक्सर नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप उनका एमआरपी देखेंगे बहुत कम होता है. तो इसका मतलब यही है कि उनका प्राइस कम है तो प्रॉफिट कम होगा. उसके बरक्स उनके जो सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, दे आर हाईली प्राइस्ड. फॉर एग्जांपल एमॉक्सिलिन की बात लीजिए आप, इसमें कुछ स्ट्रिप्स आपको 30-40 रुपए में मिलती हैं, 10 टैबलेट्स की, और इसके सब्स्टिट्यूट आए हैं, उनकी कीमत 250, 350, और हर एक मेडिकेट प्रेफर करता है टू सेल दीज हाईली एक्सपेंसिव स्ट्रिप्स ऑफ एमॉक्सिलिन. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हायर प्राइसेस, एंड हायर प्राइसेस रिफ्लेक्ट more profit, right? Now another factor that determines supply is the number of firms in an industry or in the market. Market supply of a commodity also depends upon the number of firms in the market. अगर फर्म्स ज़्यादा होंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी, राइट? देन अनदर फैक्टर इज गोल ऑफ फर्म. देखिए दो तरह के गोल्स हो सकते हैं. फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है,
अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो मोर कमोडिटी विल बी ऑफर्ड एट हायर प्राइस. On the other hand, if the goal of the firm is maximize sales or maximize output or employment, more will be supplied even at the same price. Right? तो दो तरह के गोल्स हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन. दोनों सूरतों में एक फर्म ज़्यादा सप्लाई करती है. देन अनदर फैक्टर इज द प्राइस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट्स पे इसका इन्हिसार होता है. अगर इनपुट्स का प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई कम होगी. अगर इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते दामों अवेलेबल होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी. राइट? इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि हायर फैक्टर कॉस्ट एम्प्लाइज हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा इतनी हर एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट करें. जितने इनपुट्स का कीमत कम होगा, दाम कम होगा, इसका मतलब एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में कास्ट्स कम होते हैं. तो कम कास्ट का मतलब है ही कैन सप्लाई मोर एंड मोर. देन वी हैव वन मोर फैक्टर दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी. देखिए, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं तो उससे कास्ट हमारा कम होता है. इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Consequently, profits tend to increase, inducing an increase in supply. अगर हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कास्ट्स भी बढ़ते हैं, तो उस सूरत में हमारी प्रोडक्शन कम हो सकती है. ठीक है ना? देन अनदर फैक्टर इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस. अगर एक प्रोड्यूसर को लगता है कि प्राइसेस किसी भी चीज़ के फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं, इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी राइज इन द नियर फ्यूचर, जो करंट सप्लाई है वो कम होगी, क्योंकि वो एक तरह से होर्डिंग करेगा. क्योंकि इफ़ ऑन द अदर हैंड फ्यूचर प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, वो कोशिश करेगा कि आज ऊंचे दामों पे उसका जो आउटपुट है वो बेच डाले, सेल करे. क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में उसे घाटा हो सकता है. लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होने वाले हैं तो ये माल बचा के रखेगा. क्यों? इस उम्मीद से कि ही विल सेल एट द हायर प्राइसेस एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स. एंड अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसी. देखिए, सरकार का अहम रोल होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में और आउटपुट मैनेजमेंट. सरकार दो तरह से रोल अदा कर सकती है, थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडी. ठीक है ना? तो अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म हो तो आउटपुट बढ़ सकता है. कैसे? इंक्रीज इन टैक्सेशन टेंड्स टू रिड्यूस द सप्लाई. जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो सप्लाई कम होगी. राइट? या अगर टैक्सेशन कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी. ऑन द अदर हैंड, अगर सब्सिडीज बढ़ती हैं तो सप्लाई बढ़ी, क्योंकि सब्सिडीज टेंड टू इंड्यूस ग्रेटर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, बिकॉज एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस ऑफ इनपुट्स और टैक्स हॉलीडे, टैक्स रिबेट अगर एक फर्म को मिलता है, प्रोड्यूसर को मिलता है, तो उससे उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम होता है और चांसेस बनते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए. तो ऐसी सूरतों में सप्लाई बढ़ सकती है. ठीक है ना? तो सरकार का भी अच्छा खासा रोल होता है इन डिटरमाइनिंग द ऑफ ए कमोडिटी. इन दिस वे we can say that the supply of a commodity or the supply function depends upon various factors, a number of factors, जिनमें से हमने कुछ डिस्कस किए, like price of the commodity, price of goods, other goods, number of firms in the industry, goal of firm, price of factors of production, change in supply, expected future prices, and government policy. All these factors play an important role in determining the supply of a commodity. I think it is sufficient for today. Thank you very much.